Good evening, everyone, and a very good morning to those of you who are watching us from India and other parts of the world. My name is Jasmine Sawant, and I'm the Artistic Co-Director of Savitri Theatre Group. We are delighted to welcome you to Hindi Shorts 2020. We begin by acknowledging the land on which we gather and which the region of Peel operates is part of the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit. For thousands of years, indigenous peoples inhabited and cared for this land. In particular, we acknowledge the territory of the Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe-Chippewa peoples. The land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We are grateful to have the opportunity to work on this land and by doing so, give our respect to its first inhabitants. We bring you Hindi Shorts 2020 from Sampradaya Theatre, which is located in the city of Mississauga, Ontario, Canada. And now we bring you an inspirational message from the Consul General of India at Toronto, Srimati Apurvaji Srivastava. Namaskar. I'm extremely delighted that Savitri Theatre Group has taken its Hindi short plays digital this year. This year has been unprecedented due to COVID-19 pandemic, but it is initiatives like this which keep us connected to our roots and identity. India is truly incredible. The sheer diversity of languages, cultures, traditions and customs makes us unique. And it gives me great pleasure that Savitri Theatre Group is continuing with their tradition of showcasing Hindi short plays. I would like to congratulate the writers, directors, producers, the cast, and the entire support team for their resilience and for continuing this despite the pandemic. All the very best, and I look forward to watching all the plays. Thank you. Happy Diwali. Namaskar. Namaste, good evening, सत श्री अकाल, आदाब। हिंदी शॉर्ट्स 2020 में आप सब प्रेक्षकों का स्वागत है। मैं हूं श्रुति शाह, आर्टिस्टिक को डायरेक्टर ऑफ द सावित्री थिएटर ग्रुप, और मुझे बेहद खुशी है कि आज की शाम आप कुछ वक्त हमारे साथ बिताएंगे। तो आज पेश है हमारा तीसरा लघु नाटक अम्मा, रिटन बाय उदय कृष्णा। और हमें बेहद खुशी है कि हम ऐसे वक्त में जहां हमारे दोस्तों से मिलना, हमारे परिवार से मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, कि हम हमारी कहानियां आप तक पहुंचा सकते हैं। और ये श्रेय मैं अपने सावित्री परिवार के हर सदस्य को दूंगी। तो पेश करते हैं आज का नाटक अम्मा, रिटन बाय उदय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय ऐश वर्मा। तो अभी ऐश वर्मा आके आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे फॉर द प्ले अम्मा। जिसे हम प्यार करते हैं उसका हमारी नज़रों के समक्ष ना होकर भी होने का एहसास होता है। एक माँ अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए किस हद तक जा सकती है? ऐसे प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमारी कहानी ज़रा सी अलग है। इसके लेखक हैं उदय कृष्णा और किरदार निभाएंगे उमा, स्नेहा, श्वेता, गुरु, राजन और राज। आइए झांकते हैं इस छोटे से नाटक में जिसका नाम है अम्मा। आलू ले, गोभी ले, भिंडी ले, तोरी ले। आलू ले, गोभी ले। अम्मा, ओ अम्मा, सब्जी नहीं लेंगे आज? आज ही आए। पिछली बार बोले थे ना लौकी लेके आने को। अम्मा, हे अम्मा, रो रही हो? अब कब तक ऐसे रहेंगी आप? अब जिंदगी में ये सब तो चाहिए। सब्जी अगले हफ्ते आना। काहे बेकार में गुस्सा हो रही हो अम्मा? नहीं चाहिए, कह दिया ना मैंने। जा अपना काम कर। चाहिए कभी, नहीं चाहिए कभी, आज चाहिए कभी, चाहिए नहीं चाहिए होता तो मंगवाते काहे हमें? बोलता है पागल।
जम गई है यहाँ पे। क्या बताया था? स्टार्ट प्रोग्राम्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नीला ई बोला था उसने। www.gmail.com एंटर। अरे ये क्या हो गया? हाँ, ये तो खराब हो गया, ऐसे नहीं था। शट डाउन, कहाँ गया शट डाउन? मैं इसे बंद करती हूँ, ये खराब हो जाएगा, बिजली भी खर्च हो जाएगी। क्या है? .xom, .xom हो गया। ठीक है बेटा, तुम्हारी बातें पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला दिन से रात कब हो गई। अब मैं वही करूँगी जो तुमने कहा है। मैं ई-कॉमर्स सब सीखूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, दिवाली आ रही है, जल्दी वापस आ जाना बेटा। दिव्या, 2 दिन के लिए इतना सामान कौन भरता है इसमें? अरे दिवाली के कपड़े हैं। दिवाली के कपड़े हैं तो कितने साल के कपड़े भर दिए इसी में? अरे तो मेरा बैकपैक देखा कितना छोटा है, उसमें नहीं आता ये सब। बहस मत करो तुम, हर बात में बस अपने बैग में भर ली होती। आप इतना चिक क्यों करते हो? चुप रहो तुम बस। दिव्या, हाय बुआ। कैसी हो आओ दीदी? आओ, बस प्रणाम कर लो दिव्या। तुम कैसे हो? सब बताना जीते पड़ता है रहो इनको बेटा, आजकल। जीते रहो बेटा, प्रणाम बुआ। जीती रहो बेटा, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। हो जाए बस किसी तरह। शादी का टॉपिक कैसे हो अम्मा? बस ठीक हूँ स्वरा, तुम कैसे हो बेटा? अरे अम्मा, हाँ, वो आते आते मैंने देखा श्यामलाल की दुकान तो बिल्कुल शोरूम जैसे बन गई है। पुरानी बात है वो, तुम आती रहती तो पता चलता। उसका बेटा दुबई में है, अच्छी नौकरी पे, बहुत पैसे भेजता है। बच्चों की जिद से उसने दुकान की सूरत बदल दी, वरना वो तो कंजूस है। अरे उसकी छोड़ो, अपनी सुनाओ। काफी चर्चा में हो अम्मा। चल हट, तू क्यों मुझे अम्मा बुला रहा है? अरे जचता है आप पे वो नाम। जैसे वो गुरु भाई था गुरु फिल्म में, अंबानी के लाइफ पे बनी है वो फिल्म। क्या क्या बातें चल रही हैं? आजा
सुनाता हूँ तुझे। वो छोड़ो सत्या, बच्चों बोलो क्या पियोगे? हाँ? चाय बनाओ या कॉफी या कंजी? हाँ नहीं, मुझे दिव्या, याद दिलाना, मैंने तुम्हारे लिए काजू कतली बनाई है। काजू कतली क्या? मिला। सुनो सुनो, 62 वर्ष की राजेश्वरी जी उर्फ अम्मा कानपुर से अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचती हैं। एक मिनट, और- प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट अंग्रेज हैं और अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में टॉप सेलर बन चुकी हैं। प्रदेश की महिला उन्नति संघ ने उन्हें महिला साधक की प्रशस्ति से नवाजा है। वाह, तालियां तालियां तालियां। ये सब तो मेरे सात्विक का कमाल है। उसने नहीं सिखाया होता तो मैं कहाँ कुछ कर पाती। नहाने के लिए गर्म पानी है ना अम्मा? देखो ना, अभी भी हर रोज मुझे ईमेल भेजता है, वो भी पूरे डिटेल में इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब अगर इतनी आसानी से फुर्सत निकाल के कोई समझाए तो कोई भी सीख पाएगा ना। क्या बोल रही हो अम्मा तुम? छोटू छोटू भेजता ईमेल्स वरा, तुम्हारी तरह नहीं है जब देखो बिजी। अपनी बच्चों की तरफ ध्यान दे रही हो ना, वरना बिगड़ जाएंगे मेरे बच्चे। कहाँ है? दिखाओ। हाँ चलो। चल तू हट, मैं दिखाती हूँ। उठ जा। ये क्यों पड़ा है? ये देखो। अम्मा क्या है ये सब? क्या? तुम इसे सचमुच तो नहीं मान बैठी ना? सात्विक भाई के बारे में? सात्विक तो गुजर चुका है ना दीदी, वो कैसे भेज सकता है ये ईमेल? कमाल की बात करते हो सत्या। ईमेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सात्विक जिंदा है ना? अरे बुआ, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। ये तो बस ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं या बनाए भी जा सकते हैं जिसे आसानी से भेजी जा सकती हैं। और उसमें फीड कर दिया ना कि कौन से वक्त पे कैसे ईमेल्स भेजने हैं, किस तरीके के ईमेल्स, तो इन सभी को ट्रैक करके आपको और कस्टमाइज कंटेंट भी भेजा जा सकता है, सब ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप। दीदी ये सही बोल रही है। मुझे लगता है कोई सही मजाक कर रहा है आपके साथ। हाँ, नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये उसी की ईमेल्स है। उसमें जो वो उदाहरण देता है वो सिर्फ मैं और वो जानते हैं। बुआ मैं आपको कह रही हूँ ना, ये बस ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं। अरे क्या लगा रखा है? ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा हो, बॉडी तो मिली नहीं उसकी, बस बोल दिया कि वो डूब गया है। उन लोगों ने ठीक तरह से ढूंढा भी नहीं होगा मेरे बच्चे को। मैंने पढ़ा है न्यूज़ में, इन अमरीकियों को दूसरे देश से आए हुए लोगों से सख्त नफरत है। दीदी ऐसा होता तो कॉल करता ना। अरे व्हाट्सएप फेसबुक कहीं तो होता। पता है, वो बगल वाले घर की बिटिया है ना, वो एग्जाम के टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप बंद करती है। हो सकता है इसने भी ऐसे ही किया हो। पागल हो गई हो क्या अम्मा तुम? क्या हो गया तुमको? मैंने उसके नंबर पे 1000 बार कॉल किया था। उसके यूएस के एड्रेस पे भी वो नहीं था। मेरे यूएस के फ्रेंड्स उसके घर, ऑफिस, हर जगह चेक कर चुके थे। अम्मा, अम्मा सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सरा चिल्लाओ मत। शांत हो जाओ। अम्मा देखो, समझने की कोशिश करो। वो फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर ट्रिप पे गया था, डूब गया। यूएस पुलिस की रिपोर्ट्स में भी साफ साफ लिखा है कि शायद समुद्री जीवियों ने उसे खा लिया होगा। हो सकता है उसकी आत्मा हो। आत्मा? हंस ले तू। तुझे क्या पता है इन चीजों के बारे में? तू तो नास्तिक है ना?
न पूजा न पाठ, पूरा दिन उस कंप्यूटर में घुसी रहती है। फर्स्टली आई एम जस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, हाँ वही। एंड सेकेंडली मैं इन कंप्यूटर्स के बारे में जानती हूँ, इसलिए तो आपको कह रही हूँ ना बुआ, ये सभी सॉफ्टवेयर सेटअप से पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, ऐसे जितने भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है ना, उन सभी को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि सात्विक भैया के नाम से कोई अकाउंट सेटअप हुआ है या नहीं। देखो मैं गारंटी नहीं दे सकती, हाँ, ज्यादातर कंपनियां प्राइवेसी रीजंस की वजह से शायद रिस्पॉन्ड भी ना करे, पर शायद आपके केस को एक स्पेशल केस मान के कुछ इन्फॉर्मेशन ही दे दे। अरे वो सब बाद में करना, पूरा करने ही नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे। 65 वर्ष की राजेश्वरी जी। अच्छा और अब मैं 65 की हो गई? हाँ कुछ भी बोलो दीदी, मानना पड़ेगा आपको, आपने अकेले के दम पे पूरा का पूरा होम बिजनेस शुरू किया है, वो भी इस उम्र में। अरे यहाँ की औरतों के लिए मिसाल हो आप। अब आप इसी बिजनेस को आगे लेकर जाइए। हम लोग तो इस बार वापस चले जाएंगे, और जब तक अगली बार वापस आए तब तक आप बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन जाइए ना, एकदम वो अंबानी के जैसे। चलो फ्यूचर के अंबानी के साथ एक फोटो ले लें, गुड आइडिया। बाद में पता नहीं दे ना दे। हाँ आइए। मैं आ रही हूँ ना? हाँ अरे वो फ्रंट कैमरा। बाप हूं तुम्हारा, सिखाती ही रहती बस। ठीक से ले रहे हो ना? अरे अम्मा मैंने बोला था ना मेरे कमरे को साफ मत करना, मैं खुद कर लूंगा। और मेरे न्यूज़पेपर्स कहाँ पे हैं? 6 महीने से यहाँ पड़े थे, मैंने बेच दिए। मैं पढ़ रहा था, उन्हें चाहिए थे मुझे वो। स्कूल की पढ़ाई थोड़ी ज्यादा कर और 4 नंबर ज्यादा ला। ये भी पढ़ाई ही है, ठीक है ना? एकेडमिक्स के आगे भी दुनिया है, समझो। तुम्हें तो ना बस मुझे जो भी चाहिए उसका हमेशा उल्टा ही करना होता है, देख लिया है मैंने। ले, तुम्हारे बारे में भी मैं यही कह सकती हूँ। रहने दो। चल अब हो गया ना, छोड़ देना। मेरी कॉफी कहाँ पे है? तुमने बोला नहीं तो मैंने बनाई नहीं। तुम भी ना, मैंने नोट तो किया था, अब सब कुछ बोलना पड़ता है क्या? उस साइलेंस का मतलब हाँ था। तुम भी यार। और हाँ, उस राजीव के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है आज का ना? अच्छा समझी। बड़ा लाड कर रही हो आजकल उसके साथ, देख रहा हूँ मैं। गुस्सा क्यों रहे बेटा? राजीव तो कितना प्यारा है, तुम्हारे छोटे भाई की तरह है। कभी कभार मिलता है तो उससे बात कर ली। हाँ तो उसी से जाके बात करो फिर। अच्छा मैं तुम्हें टिकल करती हूँ। उसी को करो, मैं जा रहा हूँ।
लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, पर मैं जानती हूँ वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे दिव्या, हाँ बचपन में दिवाली के टाइम पे कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना। हाँ वो नए कपड़े, पटाखे, सच में। नाउ तो बस आई जस्ट वांट टू लाई डाउन एंड टेक रेस्ट। यू नो व्हाट, चलो इसी बहाने थोड़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो कम होगा। छोड़ो यार, वो भी क्या दिन थे। घर की औरतें बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। हमेशा सिर्फ औरतें ही क्यों हाँ, क्यों खाना बनाती थी? अरे यार, छुट्टियों में तो बख्श दो, फिर से तुम्हारा वो फेमिनिज्म मत शुरू करो। वो इसलिए खाना बनाती थी क्योंकि वो ये काम बखूबी जानती थी। सुन लो, और खेतों में पसीना बहाने से तो ये काम बेहतर है। पर अब खेत तो रहे नहीं, बस सिर्फ जेंडर रोल्स रह गए। एग्जैक्टली। उसकी सारी भड़ास तुम आज के मर्द पे उतारोगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द है। ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? ओफो, तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो या टीवी चैनल की तरह वाद विवाद करने आए हो? हाँ? ओ हाँ बुआ, हाँ याद आया, वो जो मैंने कंपनीज को कांटेक्ट किया था ना, तो ज्यादातर कंपनी से ना रिस्पांस आ चुका है। कुछ अकाउंट नहीं मिली उनको सात्विक भैया के नाम से। देखा, मैंने कहा था ना कि वही है जो ईमेल्स कर रहा है, कोई ऑटोमेशन नहीं है। पर बुआ पूरी बात तो सुन लो। एक कंपनी का कहना है कि कुछ 2 साल पहले सात्विक भैया ने उनका कोई प्रोग्राम कोड यूज किया था, तो हो सकता है भैया ने उनका कोड यूज करके अपना ही कोई ईमेल जनरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया हो, जैसे चैटबॉट्स। एग्जैक्टली। वैसे ही सात्विक भैया ने खुद का एक ईमेल बॉट बना लिया होगा जो आपकी ईमेल्स भी पढ़ती है और आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई भी करती है, बिल्कुल हम इंसानों जैसे। इसको मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इस ईमेल बॉट को दुनिया भर की न्यूज़ फीड्स आती होंगी और वो अपने आप अपडेट हो जाती होगी। और रही बात आपके और उनकी पर्सनल बातों की, तो ऐसे कई सारी बातें ना भैया ने कोई ऑनलाइन डायरी या फिर पर्सनल ब्लॉग में अपलोड करती होंगी। और आजकल ये सभी तो आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती है। और सर्वर कॉस्ट वगैरह तो इतने सस्ते हैं ना कि सात्विक भैया ने अगले 50 साल के लिए पे कर दिया होगा। देखो, ये मैं कुछ समझती नहीं हूँ और ना ही मैं समझना चाहती हूँ कि या तो वही है या उसकी आत्मा। मैंने स्वामी जी से बात की थी, उन्होंने कहा ये उसकी आत्मा हो सकती है क्योंकि आत्मा हमें अलग अलग रूप में आके दर्शन दे सकती है, हमसे बात कर सकती है। अरे अम्मा, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा? और वो स्वामी जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? उस पे तो ऑलरेडी 2 केसेस पेंडिंग है। तू चुप कर, तुम्हारी शादी भी उन्हीं की वजह से तय हुई है। उन्होंने खुद आके शादी में तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। देखो कैसे सुखी परिवार चल रहा है तुम्हारा। सुखी परिवार? अरे तुम लोग कहाँ बातों में उलझ रहे हो सुरा। दीदी, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, बात को हद से बाहर मत जाने दो वरना ये आपको खा जाएगी। आप सच से दूर जाके अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगी हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, बस जरा खुले दिमाग से सोचिए। मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं जाके सोती हूँ।
बुआ को कुछ हुआ है क्या? पगला गई है। नहीं स्वरा, मजाक नहीं। हालत देखी है तुमने उनकी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, मुझे लगता है किसी समझदार और बुजुर्ग इंसान से बात करनी चाहिए। मेरा एक दोस्त मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है। मेंटल हॉस्पिटल? अब मामा जी, मेंटल हॉस्पिटल है तो क्या हुआ? अरे काउंसलिंग ही होगी वहाँ पे। अरे फिर भी हमारी फैमिली में आज तक कोई इस तरह। पापा, बन गया ना फिर से वो साउथ दिल्ली के बिजनेसमैन से कानपुर के भैया। इट्स जस्ट काउंसलिंग, चिल। अरे, दीदी जागी है शायद। दीदी जागी हो क्या? कोई भी नहीं है। अरे साया दिखा मुझे। भाई को साया दिखता है, बहन को भूत दिखता है, यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ क्यों दिखता है? ठीक है, सुना मैंने। बस यहाँ किसी से बताना मत, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो कह ही रहे हैं। सुबह बात करता हूँ मैं दीदी से, उनको अपने साथ दिल्ली ले चलें। पापा अब हमें दिल्ली विल्ली का पता नहीं, हमें आ रही है नींद। स्वरू चल ना यार, कितनी लेट हो गई है। अच्छा, मैं भी थक गई हूँ। सुबह से जगे हुए हैं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। लाइट्स तो ऑफ करते जाओ, अम्मा की बिजली का बिल बढ़ाओगे क्या? हाँ, कंजूस। सुना मैंने। बदतमीज। भरा सब इसमें सामान। अपना सामान वापस ठूस दे इसी में कि नहीं? पापा वो बुक थी ना, हमेशा वही। तैयार हो गए तुम लोग? जी दीदी, बस। जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा यहाँ तो आना। जी कल मैंने गुस्से में आके तुम लोगों से बात की, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है तुम लोग शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, पर देखो उसकी ईमेल से मेरा एक वजूद बन गया है। मुझे बेहद खुशी मिलती है, मेरे जीने का एक मकसद बन गया है। वरना मेरी जिंदगी क्या, वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अगर सब है भी तो वो मेरे बेटे ने ही बनाया है ना। वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर उसी के ख्यालात के हिसाब से बनाया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो ईमेल्स वही है जो वो मुझे भेजना चाहता था, और अगर उसका शरीर जिंदा होता तो वो भेजता भी। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम, वो ईमेल्स सब उसी का प्रतिरूप है ना। उसी का कोई अंश जिंदा है और मुझसे बात करना चाहता है। एक नजरे से देखो तो वो उसी की आत्मा है जो मुझसे बात कर रही है। बुआ, हाँ बुआ वो आप मिठाई लाने वाली थी ना? अरे हाँ, भूल गई, लाती हूँ, अभी लाती हूँ।
में डायलॉग मारा ना बुआ ने, बोलना पड़ेगा। बहुत सॉलिड था। वही उसका प्रतिरूप है ना, उसकी आत्मा है ना। बस मजाक लग रहा है तुमको ये सब? अरे तुम लोग अलग माहौल में पले बड़े हो, हम लोग अलग माहौल में। तुम्हारी तो परवरिश इस तरीके से हुई है कि जो भी किताबों में लिखा है उसको मान लिया। जो भी दीदी ने बोला उसमें क्या गलत है वो बताओ। आज साइंस और लॉजिक की बात करते हो ना तुम लोग। साइंस तो प्रूफ मांगता है। सात्विक की बॉडी तो मिली नहीं ना, कहां है उसके डेथ का प्रूफ? सिर्फ डिडक्टिव कंक्लूजन ही है ना तुम्हारे पास। उसके ऊपर तुमने अपनी एक प्रिजुडाइज्ड थिंकिंग डाल दी और मान लिया जो तुमको मानना है। हम लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि तुम्हारे विचार भी तुम्हारे एक बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं, ना कि किसी कंक्लूसिव प्रूफ से। अब तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को पूरी दुनिया मानने लग गई तो सही हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, अरे उनके जमाने में इन चीजों को ज्यादा मानते थे, और जब खुद एक विचार के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर टिके हुए हो तो किसी और के विश्वास का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? हाँ, वो तो है। Look, we are all limited by our own belief system, and we don't want to believe in anything beyond it until we are conclusively proven otherwise. पर हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अगर कोई बात आती है तो हम उसे बिना कंक्लूसिव प्रूफ के ही मान लेते हैं। इट इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम दोनों बस इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हो। देखो, अम्मा खुश है और मैं बस वही चाहती हूँ, और अम्मा की बातों में भी पॉइंट है। इट इज अ फॉर्म ऑफ हिम क्रिएटेड बाय हिम। तुम भी पगला गई हो क्या? बस, मैं अब तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता दिव्या। तुम्हारी समझ के बाहर भी दुनिया है। ऊबर आ गई। चलो। सॉरी। आग बना के दिया है। सॉरी बोला ना पापा। चुप रहो तुम। पापा सॉरी। सॉरी पापा। पापा। पापा सॉरी। सब थूक दो ना। दिव्या के लिए काजू कतली और मेरे पोतों के लिए लड्डू पसंद आ जाए उन्हें। हाँ टिट्टू बोल। अरे कुछ ना भाई, डिलीवरियां कर रहा था। के ना 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 रुक रुक। अबे थम जा छोरे।
के बाद में जी ना बढ़िया पैकेज आ रहा है, बढ़िया पैकिंग भी हो रही है इसकी तो। $25 भाई बस तो कर दे ना वैसे ताई घने दे दिए एक हेडसेट ने तने, इतने में तो एक टॉप क्लास लैपटॉप आ गया था। बेटा अपने काम से काम रखो। राम राम। ठीक है ताई, राम राम। हाँ ठीक है दादा, बाहर आओ रे, चल ले बुक निकाले। बेटा अब सब चले गए हैं, बहुत हो गया सिर्फ ईमेल्स पे बात करना। मैंने हाई क्वालिटी हेडसेट भी मंगाए हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब बात करेंगे हाँ, माँ और बेटा। साइलेंट हो, इसका मतलब हाँ है ना? हाँ बोलो ना बेटा, बोलो बोलो ना। उम्मीद है आप सबको अम्मा पसंद आया होगा, और जैसे कि आप जानते हैं कि एक टीम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो आई रियली वांट टू थैंक माय सावित्री थिएटर टीम, द कास्ट, द क्रू एंड द टेक एडवाइजर्स फॉर द लाइव स्ट्रीम। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक लता पदा जी, द सिटी ऑफ मिसिसागा। तो अगले हफ्ते पेश करेंगे द मंक, रिटन बाय उदय कृष्णा, डायरेक्टेड बाय ऐश वर्मा। तो आना ना भूलिएगा। Until then, stay well, stay safe.